houses 30 plus medical specialities, each a center of excellence, giving a patient access to a wide range of medical doctors from the moment they walk into the hospital. With cutting-edge medical facilities, world-class patient care, and the best medical practitioners from across the globe, this state-of-the-art one-stop healthcare solution is Salim Memorial Hospital. We are here to do our part to serve our community by giving you the best medical care with love, understanding, and cutting-edge medical solutions to treat you in ways which are safer, faster, and less invasive. A place where teamwork is the foundation and patient care is at the center. We work together as a team to provide you with the most effective and modern healthcare options. We are committed to practice the safest and the highest quality of healthcare, aiming for an unmatched experience by bringing the best people and the best minds in the world with the sole objective of delivering quality healthcare. Our extensive departments for diagnosis and medical treatment and services include accident and emergency, a world-class emergency department led by a physician who is European board certified in emergency medicine. It includes a dedicated emergency operation theatre and a separate PEDS emergency that's operational 24/7. Surgical department, state-of-the-art facilities and qualified doctors to cater to all surgical needs, including gynecology, neuro, orthopedics, cardiac, and general surgeries. It includes world-class modular operation theatres and separate dirty and clean corridors for infection-free movement of dirty and clean utilities. Critical care department, critical care units including medical ICU, surgical ICU, CCU, and NICU. Outpatient department. It has one of the largest outpatient facilities in the city with 50 plus clinics and a capacity to cater to 1,000 patients a day. An executive clinic that provides multiple health screening packages that help in early diagnosis, treatment, and prevention of various diseases. Other departments include dialysis center, endoscopy, physiotherapy, and dentistry. Diagnostics. Top-of-the-line treatment such as 160 slices CT scan, 1.5 Tesla MRI, and advanced cardiac and neuro packages, mammography, fluoroscopy, digital x-rays, and ultrasound. Our laboratory provides fast-track, affordable, and accurate lab reports with an option for a home sampling. A 24/7 open pharmacy also with a home delivery service. Cancer care department. Our cancer care department is especially one of the best in the country. It provides a comprehensive treatment plan with diagnosis, surgery, chemotherapy, and radiation all under one roof. A state-of-the-art radiation oncology department equipped with Varian Vital Beam Linear Accelerator and dedicated 4D CT simulator offers comprehensive radiotherapy services. Inpatient department. 100 plus private rooms that are custom designed keeping your comfort in mind. We've also brought convenience and ease at the forefront of every step. We practice sustainability and use a paperless system with a user-friendly mobile app. Everything including appointments, prescriptions, medical history, lab results, and medication is available in an easy-to-use app. Because we care for all our patients, we have a needs-blind system. There will be no difference in treatment between paying and subsidized patients. We have consciously built this culture of patient-centered care, treating all with the best medical knowledge, facilities, love, understanding, and care, promising quality healthcare for all. We are now fully operational, open, ready, and equipped to transform lives and spearhead quality modern healthcare in Pakistan. You can choose a part to play in this mission by donating via zakat, regular donation, naming a wing in the hospital, or helping a patient out by sponsoring a treatment. Whatever you choose to do,
people save a life. The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Together, we can make a difference and build a healthier, stronger, and prosperous Pakistan. Salim Memorial Hospital, committed to care. Now Sir Iqbal will introduce the panelists. Assalamu alaikum. Good afternoon, good morning to everybody, ladies and gentlemen, distinguished guests. We all welcome you here at this forum, Pakistan Textile Council, for this important topic that we are going to discuss it today. A couple of words about Pakistan Textile Council. It's an association formed by 31 of the largest textile manufacturers and exporters out of Pakistan. We have a very specific agenda to propel Pakistan textile industry and to clear the air about what we are and what we are about to do and what we are doing our entire history. And again, I would like to take this opportunity to thank Salim Memorial Trust Hospital to kind of offer to host this event. Our panelists include, I'll start with Mr. Musaddiq Zulkarnain, the leading textile exporter, manufacturer, a very, very distinguished history of the last since 1990. And he will have a tremendous view, ringside view for the last 30 or so years. Then we have Shahzad Salim, Chairman Nishat Chunia Group, and of course Chairman Salim Memorial Trust Hospital and Chairman Pakistan Textile Council. So his views are slightly different. He goes by this Twitter handle, unapologetic capitalist. So you expect from this handle, you expect certain fireworks from him. Then we have Mr. Ali Khizr, a distinguished journalist from Business Recorder Daily. He's a prolific writer, publisher, frequently published, and he looks after, I believe, Business Recorder research page, one of the maybe the best research output on 5 days a week basis. Then we have Dr. Ali Hasnan. He's a LUMS alumnus like most of us here, and he is associate professor at the Department of Economics. So we will bring this an economist perspective from his market insights and from his expertise on that side. So we expect a discussion which is going to be frank, candid, and clear the air. Are we rent seekers? Are we, or were we at ever any point in time? An industry which provides 60% of Pakistan's export last year, $19.3 billion. So do we deserve this? Have we earned this thing? So this and many other questions will be answered by today's panel. It will be moderated by Mr. Ali Khizr. So without further delay, I will hand it over to Mr. Ali Khizr and the panel so that they can come here, take their seats, and we can get the show on the road. Thank you everyone for joining us. आप सबका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और we welcome everyone who is joining online through our Facebook, PTC Facebook page, YouTube channel और through a Zoom meeting. And in the meanwhile आप लोग अपने questions भी पूछ सकते हैं. वो questions मेरे computer पे भी आ जाएंगे. So I'll take those questions. Team भी ले रही होगी. So try to be very specific in that. It's a topic. It's a very simple topic. What we are discussing here is about textile and rent-seeking industry. So first we need to understand what is rent-seeking. Rent-seeking is when there is a company and there's an individual who's accumulating wealth which is disproportionately high to the productivity that person or that company is producing. So अगर हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है और हमारी वेल्थ उतनी क्रिएट हो रही है तो हम रेंट सीक कर रहे हैं. और वो अगर आप उसको पाकिस्तान की मैक्रो पिक्चर में देखें तो वो वेल्थ क्रिएट हो रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो कंजम्पशन पे आ रही है. दैट कंजम्पशन इज लीडिंग टू योर बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज क्योंकि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, फिर लोग टैक्स नहीं दे रहे तो रेंट सीकिंग हो रही है. दैट्स इंक्लूडिंग टू फिस्कल डेफिसिट एंड ऑल दैट. सो ये हमारे यहाँ डिस्कशन होती है कि हमारे यहाँ रेंट सीकिंग है. यूजुअली हमारे यहाँ जो रेंट सीकिंग और जो कहते हैं कि सब्सिडी लेने वाले हैं उसमें हम एक्सपोर्टर्स, और एक्सपोर्टर्स में सबसे बड़ी हमारी 60% प्लस एक्सपोर्ट जो है हिस्टोरिकली और अभी पिछले साल भी और पिछले जितने साल भी देख लें तो वो टेक्सटाइल ही से आती रही है. तो जब भी हम रेंट सीकिंग और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो हम टेक्सटाइल की बात करते हैं. और टेक्सटाइल में भी वो 100-200 बड़े नाम हैं जो कि जो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, ज़्यादा उन्हीं का नाम आता है. हमने कभी रेंट सीकिंग में रियल एस्टेट की बात नहीं की, हमने कभी रेंट सीकिंग में रिटेल ट्रेड की बात नहीं की.
हमने रेंट सीकिंग में ऑटोमोबाइल की यहाँ पे इतनी बात नहीं की। ये सुनील बैठे हैं हमारे सामने, ऑटोमोबाइल याद आ गया मुझे। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं उसमें होता है। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें हिस्टोरिकली, तो हमारे यहाँ पिछले बहुत सारे सालों में बहुत जो है प्रोटेक्शन मिलती रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जैसे ऑटोमोबाइल की मिसाल है कि जी वो आए तो हमने गाड़ियों की इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और यहाँ पे कि ये जो इन्फेंट इंडस्ट्री है वो ग्रो कर जाए, बट वो फ्रीडम मुँह से कभी निकला ही नहीं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी ये है कि हम फिर इंपोर्ट प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे आपस में compete करते हैं, बाय वालों से नहीं करते। फिर आपस में वो है वो कार्टेल बन जाते हैं। सीमेंट के कार्टेल बड़े मशहूर हुए हैं, और पाम ऑयल के होते हैं, और इस तरह से तो वो एक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और ये करते हैं। फिर यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान में बड़ा स्क्यूड है। बहुत सारे टैक्सेशन होते हैं जो कि आप आगे लोगों से ले रहे होते हैं, अपने सप्लायर से, वो पास ऑन नहीं कर सकते, वो आप उनसे कलेक्ट नहीं कर पा सकते, बट आपने टैक्स कलेक्ट करना होता है, वो प्राइस में पास ऑन कर देते हैं, तो वो कंज्यूमर कर लेता है। टेक्सटाइल चूंकि एक्सपोर्ट करती है, तो ये एक वाहिद इंडस्ट्री है एक बड़ी इंडस्ट्रीज में, छोटे और भी एक्सपोर्टर्स हैं कि जो दुनिया से compete करती है। सो अगर ये रेंट सीकर है तो ये दुनिया से compete कैसे करते हैं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। अच्छा, वो दुनिया से compete करती है, और वो जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, ये एंटरप्रेन्योर जो हैं ये compete करते हैं बाकी लोगों से। अब ये लोग टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं, ये सीमेंट का कारोबार भी कर सकते हैं, गाड़ियों का भी कर सकते हैं, ये ज़मीन का भी कर सकते हैं, ये एजुकेशन का भी कर सकते हैं, अब आज अगला ज़माना हेल्थ का है उसका भी कर सकते हैं, और ये सब करते भी हैं। लेकिन इनका मेन बिजनेस टेक्सटाइल है, और उसी से पैसे लगा के वो टेक्सटाइल में इतना इन्वेस्ट नहीं करते, वो लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो सीमेंट कंपनी बनाते हैं, वो और चीज़ें करते हैं, कोई फर्टिलाइजर बनाता है, कोई कुछ करता है। आप पिछले 15-20 साल में जितनी बड़ी नई इंडस्ट्री आई, फर्टिलाइजर आया, जितने नए बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आए, कुछ उसमें टेक्सटाइल वाले हैं, तो वो वहाँ से पैसा बना के इधर लगा रहे हैं, वो उधर क्यों लगा रहे हैं। या वो अगर टेक्सटाइल में भी जाएं तो वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे ब्रांड बना लिए। आप खाड़ी एक ब्रांड है, उसके निशाद का है, आपका सफ़ायर का है, और बहुत सारे हैं जो यहाँ पे कर रही है। तो क्या एक वजह है कि वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि रेंट सीकिंग तो उन्हें मिलती है एक्सटर्नल प्लेयर से। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी बुनियादी बात है। और टेक्सटाइल बुनियादी तौर पे 2 तरह की सब्सिडीज लेता है। एक एनर्जी के ऊपर सब्सिडी है, क्या वो एनर्जी सब्सिडी है कि नहीं, वो कहता है रीजनल कंपेटिटिव रेट दें। आप कहते हैं कि जी हमने जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमने कम कीमत पे दिया है, तो ज़्यादा पैसे आपसे लेने हैं। फिर बहुत सारी चोरी होती है, वो चोरी के पैसे जो है वो भी हमने आपसे कलेक्ट करने हैं। फिर चोरी करने के बाद जब वो नहीं होता, सर्कुलेट क्रिएट हो जाता है, तो सर्कुलेट रेट पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो भी हमने आपसे लेने हैं। तो जब आप बाकी सेक्टर को, बाकी कंज्यूमर को, गवर्नमेंट की डिस्कोस की इन एफिशिएंसीज को टेक्सटाइल प्लेयर पे लाते हैं, तो क्या उसकी राइट नहीं है कि वो कहे भाई कि जो बिजली की कीमत है वो मेरे से लो। ये बात होती है। दूसरा आप उसकी होती है कि जी फाइनेंसिंग के ऊपर उसको सब्सिडी होती है। उस फाइनेंसिंग की सब्सिडी में मेरी बात ये है कि यहाँ पे बड़ा मिसयूज हुआ। यहाँ पे टेक्सटाइल प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 2000 के शुरू के दिहाई में बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग ली, सस्ती फाइनेंसिंग ली, रियल एस्टेट लगा लिया। इस वक्त आप रियल एस्टेट टाइकून देखें, या रिंग रोड लाहौर के करीब बहुत बड़े हैं, वो टेक्सटाइल से पैसे से, और बहुत सारे 4-5 टेक्सटाइल वालों ने मिलकर बनाया, फिर एक उसमें से बड़े रह गए, और भी बहुत सारे नजर आएंगे आपको। और उस वक्त जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे इशरत साहब, उनसे पूछते थे तो कहते थे यार कोई नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। तो बहरहाल अब वो सब्सिडी तो ख़त्म हो गई है IMF के बाद आपकी फ़िलहाल, लेकिन दूसरी है। तो हम इस बुनियादी सवाल पे आएंगे कि भाई क्या ये टेक्सटाइल रेंट सीकिंग इंडस्ट्री है विज़ावी अदर इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अंदर कैसे काम करते हैं, विज़ावी दुनिया में कैसे काम होता है। तो जिस तरह हम बैठे हैं, मैं इसी तरह शुरू करूँगा। तो मुसद्दक इंटरलूड, अच्छा ये एक वो कहेंगे कि ये वो थे कि इनका कुछ पता नहीं था कि कितने बड़े प्लेयर हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इनको नहीं जानता था, ठीक है ना। मेरी बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, ये बड़े लोग खुद मिलते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, ये नहीं कभी करते थे। इनकी कंपनी लिस्ट हुई इंटरलूड, उसके बाद इनका ज़्यादा जिक्र हुआ, फिर इनसे इंटरेक्शन ट्विटर पे ज़्यादा होता है, इस तरह से होता है। ये फ़र्क ब्रीड के हैं, ये वो लोग हैं जो बाकी उससे डिफरेंट है।
अब शहजाद की कंपनी है, वहाँ पे जब मेरे मार्केट में जो कि बहुत दोस्त है वो कहते हैं यार हम शहजाद की कंपनी में निशात चुनिया में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, या वो जो है ना वो डिविडेंड नहीं देते, ये नहीं देते, वो शेयर होल्डर को पास ऑन नहीं करते, ये मियाँ साहब ये करते हैं, ये वो करते हैं। इनकी कंपनी को लोग बड़ा पसंद करते हैं और ये काम भी एक ही करते हैं, ये जराबे बनाते हैं और बनाते ही जा रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें बहुत अच्छे चले गए हैं। तो पहले मैं इनसे पूछूंगा कि भाई आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। आप जर्नलिस्ट को, आप हुकूमत के लोगों को, आप लॉबिंग उस तरह नहीं करते, बाकी ये करते हैं, और क्या टेक्सटाइल रेंट सीकिंग है कि नहीं, फिर शहजाद और ये वो। तो अब आगे हम शुरू में जो है एक 3 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं ईच पैनलिस्ट को कि जो रेंट सीकिंग के बारे में टेक्सटाइल पे उनका क्या व्यू है वो करें, फिर उसके बाद आगे सवाल करेंगे। तो स्टार्ट विद यू मुसद्दिक साहब। थैंक यू विजय। एक तो ये मैं लेट मी क्लैरिफाई दैट व्हाइल दिस पैनल हैज बीन अरेंज्ड बाय पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल, बट व्हाटएवर आई से हियर डजंट नेसेसरीली रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल। इसमें टॉपिक में आपने बड़ी ख्याल में बहुत इससे हासिल रोशनी डाली है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स। एक चीज़ जो हम बहुत सारी चीज़ें हम हमारा जिसको आप टेक्सटाइल सेक्टर कहते हैं या एक्सपोर्ट्स है या रेंट सीकिंग, इसके ऊपर बहुत बात होती है, बट जो एक चीज़ को आज तक मेरे ख्याल में एडिक्वेटली आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और वो ये है कि टेक्सटाइल है क्या, WTO टेक्सटाइल किसको कहता है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती और हमें ये पता नहीं चलता हमने क्या करना है। ये एक मेरा व्यू डिफरेंट थोड़ा सा व्यू है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रॉम सिंस इट्स इंसेप्शन, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो मुलाजमतें फ्राहम की हैं, कानून जो आया है, लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बेसिकली कॉटन ग्रोइंग कंपनी, मगर हमें अनवार्निश्ड ट्रुथ जो है ना, जो हमारे टारगेट के प्रेसिडेंट है वो ये बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, आई लव इट, अनवार्निश्ड ट्रुथ। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या अच्छा है, दिल्ली क्या अच्छा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव टू एनालाइज इट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब जो मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ, सारी दुनिया इवन WTO अपैरल एंड रेडीमेड गारमेंट्स को टेक्सटाइल का हिस्सा नहीं मान रहे, हम ये सारा कुछ कंबाइन कर दिया, और पाकिस्तान में मुझे टेक्सटाइल की बात, जहाँ तक कि टेक्सटाइल की फिगर आती है, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट को भी टेक्सटाइल ग्रुप में डाल देते हैं। सो दिस इज वेयर वन ऑफ द प्रॉब्लम लाइज कि कहाँ दुनिया में तकरीबन सवाए उन मुल्कों के जिनमें रॉ मटेरियल था, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, एवरीबडी एल्स हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप। अब बांग्लादेश को देखें, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट नहीं होती, वियतनाम में बिल्कुल नहीं थी, वियतनाम अब आके ये WTO की वजह से एक्सपोर्ट है, अब आके वो 37% ऑफ देयर जितनी वो अपैरल में एक्सपोर्ट करते हैं उसका 37% वो टेक्सटाइल्स में आते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए इंडस्ट्री लगानी थी और बना के हाई वैल्यू नायलॉन जहाँ टेक्सटाइल जहाँ करना शुरू हो गया वो करना शुरू हो गया। पाकिस्तान क्या बहुत मुल्क हैं जिनमें टेक्सटाइल जो उसको WTO टेक्सटाइल मानता है उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और अपैरल की कम है। तो मैं जो भी बात करूँगा मैं इस तनाज़र में भी करूँगा कि हमने, क्योंकि हमारे पास कॉटन थी और बड़ी हम उसको बाकी बड़ी अच्छी चीज़ थी, उसकी वजह से हमने ऑब्वियसली जिनिंग लगानी थी, जिनिंग लगा के हमने स्पिनिंग लगानी थी, नेक्स्ट फेज हमारा वीविंग था, मगर हम उस मैस में से निकल ही नहीं सकते। हम आज तक कहते हैं कॉटन हमारी स्ट्रेंथ है, और मैं हर जगह कहता हूँ कॉटन हमारी वीकनेस है। कॉटन हैज़ रियली ब्रॉट द स्टोन, कॉटन इज नो मोर अ कॉटन फाइबर ऑफ फेवर इन द वर्ल्ड, कॉटन की चीज़ों में खरीदता है, मगर हम कॉटन में फंस के रह गए। और जिस तरह आपने अपने नोट में भी लिखा था कि हमने यहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में प्रोटेक्शंस दे के आज सबसे जो मुझे गंदा पॉलिएस्टर यहाँ मिलता है वो पाकिस्तान का बना मिलता है। आई डोंट बाय फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर्स। दुनिया में नायलॉन्स एंड टेक्सटाइल नायलॉन्स एंड माइक्रोफाइबर्स एंड वूल ब्लैंड्स उनकी बात हो रही है, दैट्स द वैल्यू एडेड गारमेंट्स है, और हम क्योंकि कॉटन में फंसे हुए हैं हम उसमें से निकल नहीं सकते। तो वी हैव टू सेपरेट दीज टू थिंग्स टू एनालाइज कि कहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। रेंट सीकिंग ऊपर मेरा था कि आपने खुद बड़ी इससे रोशनी डाली है, क्योंकि शहजाद इस पर भी बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमें या किसी को, वो टेक्सटाइल्स है या वो अपैरल है, इनको एट द कॉस्ट ऑफ नेशन कोई सब्सिडी दी है। हमारी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि आप
हमें क्रॉस सब्सिडाइज हमारे से ना करवाएं। बिल्कुल गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, पर वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास से हमारा पैसा इस्तेमाल ना करें हम। और दूसरी चीज़ जो है उसको कुछ ऐसे इंसेंटिव होते हैं जो दुनिया देती है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, जो आपका रनिंग फाइनेंस है जिसको मिसयूज किया गया, मैं इससे भी आपको एग्री करता हूँ, बिल्कुल उस पर कंसेशन ना दें। और कैपिटल अकाउंट में सारी दुनिया इंसेंटिवाइज करती है। इस वक्त आपने खुद फरमाया एक बड़ा नेगेटिव इंसेंटिव है टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस लाइक अपैरल एंड टेक्सटाइल्स। लोगों की इजी मनी है और आई डोंट ब्लेम इफ यू कैन मेक मोर मनी इन रियल एस्टेट, व्हाई नॉट। तो आप जाए कि इसको इंसेंटिवाइज करें। आप मैं अगर होगा तो मैं ये कहूँगा, अच्छा यार, अगर इफ यू पुट अप इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड पुट अप अ यूनिट इन लेट्स से भक्कर, you will get 4 cents of bill. That's what China is doing. Take away the pressure from big cities and incentivize, lower the markup rates. State government, Punjab government has a subsidy. If Punjab wants industry to come to Punjab, let the Punjab government bring on capital account subsidy. या फिर इंडस्ट्री लगाए, कैपिटल अकाउंट में हम लोग को 5% नाम दे, मतलब सारे दिए दे, सारे रियल एस्टेट में that's what we do. So I think we'll have to create a mixture where we want to incentivize, not subsidize the profits, but incentivize growth and employment, and where we shouldn't. आपका ये कहने का मकसद कि जैसे टर्फ जैसी स्कीम है, इस तरह की स्कीम होनी चाहिए कि कैपिटल के अंदर जिसमें इन्वेस्ट हो और उसके ऊपर हो, लेकिन रनिंग फाइनेंस पे नहीं होनी चाहिए। टर्फ हमें होनी चाहिए restricted for value added industry and in remote areas. In remote not Lahore and Faisal. बिल्कुल ठीक। I'm sorry, this is what I feel. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बड़ा एक बुनियादी पॉइंट जो इनका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी हमारे यहाँ बहुत सारे टेक्सटाइल के लोग समझते हैं कि कॉटन हमारी स्ट्रेंथ है, जबकि इनके ख्याल में कॉटन हमारी वीकनेस है। जैसे हमारे यहाँ आवाम समझती है कि इमरान खान हमारी स्ट्रेंथ है, स्टेट समझती है कि वो वीकनेस है। तो ये बड़ा एक ये जो है ना, ये एक जो वो है मखमसा है जिसको हम कहेंगे पैराडॉक्स। तो इस पे अब बात करेंगे। तो अब शहजाद के पास जाते हैं। शहजाद, आपको बारे में बड़ी दुनिया कहती है भाई आप रेंट सीकर हैं, आपके मामू भी हैं, ये वो तो बताएं जरा। तो मामू का सवाल तो मामू से पूछना चाहिए, मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, आई थिंक ये टॉपिक चूज करने, टॉपिक सजेस्ट मैंने ही किया था, और आई फील दैट एवरी डे व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन इन दिस कंट्री, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। और आई थिंक मुसद्दिक साहब ने जो टेक्सटाइल्स के मुतल्लिक बात की है वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव है। सो आई वुड स्लाइटली टॉक अबाउट अ लिटिल बिट जनरल इशू ऑफ दिस रेंट सीकिंग फिनोमेना एंड द फिनोमेना दैट व्हाई आर पीपल परसिक्यूटेड इन दिस कंट्री ऑल द टाइम। सो क्या हमने कोई ऐसा अजीब काम किया है जो कि दुनिया में नहीं होता, या लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं ऑफ द इशूज़ कि आपको नेगेटिविटी जो है, या एक पूरी कौम की जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग हो गई है, वो उसमें हर आदमी जो है ना वो किसी चीज़ में फॉल्ट निकाल रहा है। और इसमें मैंने तो 2 इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, ये IPPs में भी और टेक्सटाइल्स में भी, तो ये काफ़ी बदनाम ज़माना इंडस्ट्रीज़ हैं। आज सुबह कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था तो किसी ऑडिटर जनरल ने कह दिया कि पता नहीं 70 अरब रुपए की तो हमने गैस में सब्सिडी दे दी है, और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ गया। कुछ अर्सा पहले जो है वो इसी तरह की रोज़ खबरें आ जाती हैं, एक ऑडिटर जनरल कोई रिपोर्ट बना देता है, और मेरा ख्याल में उनकी अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट पे डिस्कशन क्या हो रही है, लेकिन वो खबर उठाई जाती है और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाती है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इफ़ यू जस्ट लुक एट वेरियस इनपुट कॉस्ट्स, तो गैस जो है वो पाकिस्तान में अगर आप उसकी एवरेज कॉस्ट देखें तो इस वक्त कोई $6.5 के करीब है, और सिंध में सस्ती है कुछ लोगों के लिए, पंजाब में ये रेट फ्लक्चुएट करता रहता है $9 से, कभी 12 कभी 13। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, कहीं गैस ज़ाया हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, बट उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में भी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में 20 रुपए का यूनिट कुछ अर्से हम लोगों को इंडस्ट्री को देते रहे, बट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ड्रामेटिकली कम है, और वो ड्रामेटिकली कम होने के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो जब आके एंड में उसके बेशुमार वजूहात हैं। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है एग्रीमेंट्स में, 25 साल के एग्रीमेंट्स हैं, 10-10 साल के डेट हैं, सो वो टॉप हैवी हो गए हैं सारे एग्रीमेंट्स। उसके बाद मैसिव लीकेजेस हैं सिस्टम के अंदर जहां आप रिकवरी नहीं कर सकते।
सो मच सो कि अगर आज आप पंजाब में एक इम्पोर्टेड कोयले पे या लोकल कोयले पे पावर प्लांट लगा लें जो कि बहुत ही लो एफिशिएंसी का प्लांट होगा, इट कैन स्टिल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लेस देन व्हाट द स्टेट कैन सप्लाई। सो हम किससे कम्पीट कर रहे हैं? स्टेट की इनएफिशिएंसी स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर वो इनएफिशिएंसी स्टार्टिंग पॉइंट लेके हमने कम्पीट करना है तो हम नहीं कर सकते। मैंने आज से कुछ साल पहले, मेरा ख्याल है 7-8 साल पहले, मैंने एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उनको एक आर्टिकल दिखाया कि इंडियन न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल लिखा था। 2 स्टूडेंट्स ने रिसर्च की कि पाकिस्तान को अगर तबाह करना है तो कैसे तबाह किया जाए। उन्होंने मैगजीन में आर्टिकल लिखा और उन्होंने बताया जी कि इन चीज़ों में आप अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी दें जो पाकिस्तान की कोई स्ट्रेंथ्स हैं तो वहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। सो उनका थिंकिंग प्रोसेस किस स्ट्रेटिजिक लेवल पे, और हम लोग कितने एक अनबिलीवेबल ट्रैप में फंसे हुए हैं कि हम हर वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री ने या किसी कंपनी ने कोई रेंट सीकिंग की है या बेईमानी की है। अब इनहेरेंटली रेंट सीकिंग की डेफिनेशन क्या है कि आपने रिस्क नहीं लिया। मैंने 30 साल पहले जब काम शुरू किया था तो जो टॉप 10 ग्रुप्स थे पाकिस्तान के टेक्सटाइल में, आज उनमें से मेरे ख्याल में 4 मौजूद नहीं। सो अगर वो मौजूद ही नहीं है तो ये इतना अच्छा कोई कारोबार था, वो सब कहाँ चले गए? एंड पीपल लाइक इंटरलूप आर नाउ टॉप ऑफ द लिस्ट which maybe did not exist 30 years ago. So at the end of the day, if this was such a great business, why are people going bankrupt? I mean, in larger groups हम बैठ के देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, ये brutal business है, इसमें आप गलत फैसले करेंगे तो भी आप bankrupt हो जाएंगे। Various factors हैं, we don't have the time today to go into all those things, but it's a highly risky business. And that is also one of the reasons that people now want to go and invest in real estate. Or want to go, maybe somebody was telling me that तुम 30 साल पहले डिफेंस में इतने के प्लॉट खरीद लेते तो शायद तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं। इफ़ दैट इज़ ट्रू, इट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। इसका मतलब है मैं तो 30 साल में फिर धक्के ही खाए, कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ कि अगर ये काम ना ही करते। और अगर हम पूरी सोसाइटी को यही मैसेज दे रहे हैं कि आप डॉलर ख़रीद लें या आप प्लॉट ख़रीद लें तो काम कौन करेगा? अच्छा चलें, लोग नहीं काम करेंगे इस कमरे में, बट समबडी विल हैव टू मेक अ फैक्ट्री। When that factory is made, you will use cement, you will use steel. आपने सोशल सिक्योरिटी काटनी है कॉन्ट्रैक्टर की, स्टेट के एक्सचेकर में पैसा जाता है। आप बिजली बनाते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं उसमें आप किसी और को सब्सिडाइज कर रहे हैं, स्टेट के एक्सचेकर में पैसा जाता है। आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं, उसको सिर्फ तनख्वाह नहीं देते, सोशल सिक्योरिटी और EOY स्टेट के अकाउंट में जाता है। फिर वो गंदा घर जाके एक टीवी खरीदता है जो हमारा एम्प्लॉय है, तो टीवी की फैक्ट्री चलती है। हमने तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को किल करने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है बाय कॉलिंग एवरीवन अ थीफ। एंड आई थिंक जो मैं अपनी बात को ख़त्म इस सिर्फ पॉइंट पे करूँगा कि हर सोसाइटी में ना एक रिस्क और रिटर्न होता है। आज आप कॉन्गो में चले जाइए, काम कर ले, 100% डॉलर पर रिटर्न मिलता है आपको। क्यों मिलता है? क्योंकि शायद आपको कोई गोली भी मार देगा। तो आपने 100% डॉलर रिटर्न कमाना है तो आप चले जाएँ, गोली भी खा लें। रिस्क फैक्टर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा रिटर्न होता है। पाकिस्तान में अगर इस मुल्क में हमने तरक्की करनी है तो हमें रिस्क फैक्टर घटाना है, और रिस्क फैक्टर घटाने में एक ये नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस नैरेटिव के मुतालिक हम बात ही नहीं करेंगे, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो एक साइड का सिर्फ नैरेटिव है कि आप चोर हैं। मुझे लोगों ने कहा ये क्या टॉपिक है, मैंने कहा यही तो टॉपिक है। वाई कांट वी टॉक अबाउट इट कि हम चोर नहीं हैं। देयर इज़ अ मुसद्दिक साहब इज कवर्ड मोस्ट ऑफ द इशूज़, हाउ कंट्रीज प्रोग्रेस। क्या पाकिस्तान में कोई और मैकेनिज्म है प्रोग्रेस करने का जो साउथ कोरिया में नहीं था, या जापान में नहीं था, या इंडिया में नहीं है, या बांग्लादेश में नहीं है? तो अगर कोई है तो हमें भी बता दें, लेकिन हमें तो और कोई तरीका समझ नहीं आता। स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बहरहाल ज़रूरी है और प्रायोरिटी स्टेट लेवल पर सेट होनी चाहिए। इनकी बात में बड़ा वजन है कि अगर स्टेट को नज़र आ रहा है कि आज आपके पास एक स्पिनिंग कैपेसिटी है एंड यू आर शॉर्ट ऑफ नाउ रॉ मटेरियल, तो मे बी द इंसेंटिव्स कैन बी गेट टूवर्ड्स कम्प्लीटली उस चेन को कंप्लीट कर लें कि यहाँ से कोई भी नॉन फिनिश प्रोडक्ट पाकिस्तान से ना जाए, डाइड कपड़ा भी मत जाए, किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, गारमेंट बन जाए, जुराब बन जाए, उसकी जो भी बनना है बन जाए। सो ये स्टेट, सारी दुनिया में स्टेट्स इंटेलिजेंट एनालिसिस करके ये पॉलिसीज़ बनाती हैं, और अगर वो नहीं करें तो आप उसका इल्ज़ाम जो है या उसका जो खमियाजा है वो प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं पे कर सकती। देयर इज़ अ रोल ऑफ द स्टेट इन एवरी इकोनॉमी, एंड आई थिंक दैट दिस इशू हैज़ टू बी एड्रेस्ड। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमें यहाँ का रिस्क घटाना पड़ेगा, एंड रिस्क में
बाकी रिस्क तो आप लोगों को पता ही हैं. यू हैव टू डील विद द इनकम टैक्स, यू हैव टू डील विद द अथॉरिटीज़, you have to deal with NAB, you have to deal with everything. But narrative is also a huge risk. How many percentage points we will add to the return on equity because of the negative narrative in this country is a big question mark, and I think it's a huge number. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि रिस्क क्या है, नैरेटिव क्या है और किस सेक्टर को क्या प्रायोरिटी है. अब इस वक्त आप देखें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसके शेयर शायद 15% जीडीपी में है और वो इस वक्त डायरेक्ट टैक्सेस का 56% टैक्स देता है. होलसेल एंड रिटेल जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तकरीबन 19% है और वो 1% टैक्स देता है. एग्रीकल्चर जिसका कंट्रीब्यूशन 20% है वो 1% टैक्स देता है. तो और लैंड जो है वो तो बिल्कुल ही कुछ ना होने के बराबर कुछ टैक्स देता है और वो सारा है ही अनडॉक्यूमेंटेड. तो क्या वजह है कि पिछले 15-20 साल में हमारा कोई नया प्लेयर नहीं आया, कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया, हर कोई रिटेल ट्रेड में गया है, हर कोई रियल एस्टेट में गया है. उसमें क्या ऐसे इम्पेडिमेंट है, क्या एंट्री बैरियर इनकी तरफ से है या स्टेट की तरफ से है, इस पे भी हम जाएंगे. लेकिन अभी हम पहले जाते हैं कि अली हसनैन हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, लम्स के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है और हमारी इनसे अक्सर ये बहस होती है. ये तो एक वो पेन स्ट्रोक से लिख देते हैं जी कि रेंट सीकर हैं ये सारे, और ये मुशर्रफ साहब जिसके ज़माने की हम तारीफ़ें करते हैं वो उसमें कहते हैं कि जी देखिए एक्सपोर्ट हमारी सेकुलर डिक्लाइन पे है, प्रोडक्टिविटी हमारी सेकुलर डिक्लाइन पे, तो आप कैसे तारीफ़ करते हैं. तो ओवर टू यू अली. आजकल मौसम में झूठे इल्ज़ामात का देखिए अगर इसके अंदर मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल कॉन्वर्सेशन इसकी है क्योंकि मैं इसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ. मैं क्लासरूम के अंदर रेंट सीकिंग पढ़ाता हूँ और अगर मैं उस डेफिनेशन लोगों की डेफिनेशन से देखूँ तो वो भी अब मैं आपको उसकी डिटेल में जाता हूँ तो एक कंक्लूजन निकलती है. और अगर मैं एक प्रैक्टिकल और पॉलिसी इकोनॉमिस्ट की नज़र से देखूँ तो कुछ और व्यू निकलती है. मैं कोशिश करूँगा कि दोनों आपको आपके सामने चीज़ें रखूँ. पहली चीज़ ये है कि इकोनॉमिक रेंट किस चीज़ को कहते हैं. रेंट इज़ नॉट किराया, रेंट इज़ कि जहाँ आपके पास कोई एडवांटेज या बेनिफिट आ रही हो जो कि नेचुरली अकरिंग या मार्केट बेस्ड आउटकम से ना आ रही हो, तो मसनूई तौर पर आपको कोई प्राइस मिल रही हो, कोई बेनिफिट मिल रहा हो. तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आपको एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक पावर का रेट मिल रहा है, अगर आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक या एक सेक्टर स्पेसिफिक यानी इंडस्ट्रीज़ को कैपिटल की कॉस्ट सस्ती मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक रेंट की लोगों डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है. और अगर इकोनॉमिक रेंट अवेलेबल है तो मैं आपको थ्योरेटिकली दिखा सकता हूँ. 4 क्लासेस लगती हैं सीनियर स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करने में कि ये फिर एक नेचुरल अकरेंस है कि रेंट सीकिंग होगी, बल्कि जो बंदा रेंट के मौजूदगी में रेंट सीकिंग ना कर रहा हो उसके ऊपर मुझे शक होगा, उसकी इंटेलिजेंस पर और उसकी एफर्ट लेवल्स पर मुझे शक होगा कि वो क्यों नहीं उस एडवांटेज ले रहा. लेकिन जिस तरह के इन दोस्तों ने कहा और मुझे बड़ा ताजुब हो रहा था इनकी बातें सुनकर, बिकॉज दीज आर पीपल हु आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है कि आप वो अपने लिए पैदावार बढ़ाएं, और ये हुकूमत की और माशरे की जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए जिसके अंदर उनका मुफाद कौम के मुफाद के साथ जुड़ जाए, ना कि एडवर्सेरियल बन जाए. अब हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है with the economy. There are businessmen who are benefited even though economy किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है. और उसकी सिंपल रीजनिंग क्या है कि आपके पास या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, मसनूई तौर पे आपको बेनिफिट्स ऐसे दिए जाएं जो कि जिसकी जस्टिफिकेशन भी होती हैं कि, और उसकी मेरे नज़दीक सबसे जो क्लोज टू माई हार्ट सबसे जो एग्जांपल है वो कार इंडस्ट्री की है. मुझे खुद गाड़ियों का बहुत शौक है, तो बचपन से देखते आए हैं. और उसके अंदर जैसे अली ने भी पहले भी कभी बात की कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो है वो गाड़ियों की प्रोडक्शन से निकल आया, बिकॉज दे थिंक कि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहें. और पाकिस्तान में 2016 में हमने नई ऑटो पॉलिसी लगाई जिसके ज़रिए नए मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में आए. पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग की वायबिलिटी नहीं है. I am convinced and I can have this debate for hours on this. अब अगर किसी बिजनेसमैन ने उस नए रूल का एडवांटेज लेके फैक्ट्री लगाई है
हाउ मच इज ही टू ब्लेम? ये मुझे नहीं पता कि मंशा साहब की क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी मिफ्ता इस्माइल के साथ, या उस लेवल पे क्या कॉन्वर्सेशन होती है। रेंट सीकिंग और रेंट सीकर का मैं टर्म पसंद नहीं करता, बिकॉज ये एक एडवर्सेरियल उसमें आ जाती है बात। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे पॉलिसीज बनाए, बिकॉज आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद मिफ्ता इस्माइल, मैंने उनका इंटरव्यू किया था 2016 में। जब वो पॉलिसी लगा रहे थे तो उनके जहन में था कि कंपटीशन बढ़ेगी, लेकिन वो कंपटीशन उसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल के तर्ज पे चल रही है। तो हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि आज से 20 साल में पाकिस्तान गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, एज फार एज आई नो। और हमारा एक दूसरा मसला ये है कि हम पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि डिपार्टमेंट्स के अंदर दबी जाती हैं, ना कि पब्लिक में आए, ताकि उस पर पब्लिक डिबेट हो सके। देयर आर स्टडीज दैट शो कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आप एक बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो अगर आप विड्रॉ करके R&D के अंदर लगा लें तो उससे बेनिफिट ज़्यादा होगा, और जो करंटली बेनिफिट मिल रहा है वो कम है। सो आई वुड रैदर कि हम कॉन्वर्सेशन को इधर देख रहे हैं कि वो क्या ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत हमें एक पॉजिटिव इंडस्ट्री और पॉजिटिव इकॉनमी इस्टेब्लिश करनी है, ना कि ये कि हम कहें कि आप रेंट सीकर हैं और आप रेंट सीकर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, और स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ इतने बड़े बड़े क्राइसिस हैं। मैं एक लिस्ट बना रहा था जिसके अंदर मैं सोचा, अच्छा मैं अगर इकॉनमी को चला रहा हूँ तो मेरे पास क्या 10-15 बड़ी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर ट्विन डेफिसिट्स आ जाते हैं, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी इन लीगल एनवायरनमेंट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, एनर्जी सेक्टर, ट्रेड रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डेवोल्यूशन जो इन्होंने बात की कि अगर पंजाब को बेनिफिट चाहिए तो आप ये पॉलिसीज़ जो हैं चाइना के अंदर वो एक म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर डिसीजन हो रही होती है, तहसील को समझ लें। तहसील लेवल पर कंपटीशन जब होगी फॉर इंडस्ट्रियल प्लेयर्स टू कम इन, तो वो फिर इंडस्ट्री दोस्त पॉलिसीज़ बनाते हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं है। तो उस लिस्ट में टॉप 10 के अंदर ये बात आती है दैट वी आर गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू एक्सपोर्टर्स, और हम इस पर तफसील पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी लिस्ट में बहुत नीचे है। सो आई वुड मच रादर टॉक अबाउट ब्रॉडर इकोनॉमिक। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात की अली ने जो ये कहा कि ये जो एंटरप्रेन्योर है वो कंपेटिटिव है, वो कट थ्रोट है, उसको जहाँ रिटर्न नज़र आएगा, जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी वो वहाँ जाएगा। और अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं कि वो उस तरह के रेंट क्रिएट्स हुए हैं, तो अगर उस रेंट को आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। दैट इज़ द फंडामेंटल इशू। तो हमें एंटरप्रेन्योर को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें उन पॉलिसीज़ को बुरा कहना चाहिए। बट कमिंग टू दैट कि ये फिर ये किस तरह इंट्रेंच हो जाती हैं। अब आपने ऑटो पॉलिसी की बात की, तो ऑटो पॉलिसी में जब 2016 में ये पॉलिसी आ रही थी, उससे पहले ये कई दफ़ा पॉलिसी आने की बात हुई। उसमें ये डिबेट नहीं होती थी कि इस गाड़ी की इंपोर्ट्स को हम खोल दें उसका, ताकि हम देखें कंपेटिटिव है नहीं। उसमें ये बात होती थी कि नए प्लेयर्स आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, पुराने कहते थे नहीं आने चाहिए, वो नहीं आने चाहिए। और इनकी इतनी इंटरेस्ट, इनकी लॉबिंग होती है। मैं नया जर्नलिज्म आया था, ये 2011 की बात है। उस ज़माने में हमने 1 साल के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट खोली को 50-70 हज़ार, ये सुनील को ज़्यादा याद होगा, गाड़ियाँ इंपोर्ट होगी बहुत ज़्यादा। और वो हमने कोई इंपोर्टर कराची में था, उसका हमने इंटरव्यू करके अखबार में छाप दिया। अगले दिन जनाब हमारे वो उधर बिजनेस रिकॉर्डर के 5वें फ्लोर पे परवेज़ याद साहब जो सेकेंडस के CEO थे, उनके वो लंबे बाल वाले वो आ गए, वो 4 घंटे हमारे साथ बैठे रहे। फिर उससे अगले दिन हबीब मरूम ने मुझे बुला लिया, 2.5 घंटे मुझे प्रेजेंटेशन देते रहे। मुझे इतनी अपनी इंपॉर्टेंस कभी महसूस ही नहीं हुई थी कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि वो उन लोगों की इंडस्ट्री, उनका जो एक दुकान चल रही है, उस दुकान पे हाथ था। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अब इनकी भी दुकान चल रही है, अब आप उस दुकान पे हाथ डालेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा बोलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें दुकान को ठीक करना है, तो पीछे से इंसेंटिव को ठीक करना है। और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जी हमें उसको इंसेंटिव को ठीक करना है और किस तरह जाना है। तो हमें फिर इंडस्ट्री में जो है वो सिलेक्शन बायस नहीं होना चाहिए, बट ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसको किस तरह ट्रीट करना है, दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन वी हैव इन माइंड। बट कमिंग टू आपके ऊपर जनाब कि मुसद्दक साहब के 15-20 साल में मैंने किसी टेक्सटाइल वाले को बड़ा नहीं होते देखा। आप है या एक वो स्टाइल वगैरह वाले हैं, क्या आप लोगों ने कैसे ऐसे गुर खाए हैं, क्या आप सीख के आए हैं जो बाकी नहीं कर सके? मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो टेक्सटाइल को बंद करके बैठ गए हैं और गालियाँ देते हैं भर भर के
आपने ऐसा क्या गुड़ खाया जो आ गए? और दूसरी बात आपने की कि जी ये कॉटन वाली बात, मैंने बड़े एसएमई के प्लेयर देखे हैं जो सियालकोट में इधर उधर है, जो कहते हैं यार कि हमें आर्टिफिशियल जान के अंदर या पॉलिएस्टर के लिए हमें चाहिए, बट वो कहते हैं ये इब्राहिम फाइबर वाला कम वक्त है, ये ICI वाला कम वक्त है, ये हमें ये लॉबी कर देते, ये करने नहीं देते। तो ये मुझे ज़रा बताइए कि ये क्या इसमें ऐसा चल रहा है? थैंक यू। आपने कई क्वेश्चन मिक्स कर दिए। एक तो ये कि अगेन आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर एवरीबडी हु हैज वर्कड सो हार्ड इस मुल्क में, जो टेक्सटाइल सेक्टर में आई थिंक हमें यहाँ लाने में, मेरे ख्याल में एक तो चीज़ ये थे हम कह लें बेवकूफ़ थे या हमें बिजनेस का पता नहीं था, तो दैट इज़ वन रीज़न फॉर सक्सेस आई काउंट। ये एक चीज़ ये कि हमें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया था कि यार जो कैपिटलिज्म का फेलियर है ना, एंड आई थिंक नाउ द वर्ल्ड इज रियलाइजिंग, इवन दी जो आपके करिकुलम ऑफ US बिजनेस स्कूल भी चेंज हो रहे हैं। जो कैपिटलिज्म का फेलियर कह लें या एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कैपिटलिज्म हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर जस्ट द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. Capitalism has not looked after the stakeholder interest. So that is a very basic difference. And now the world, they have realized because of all this haves and have-nots का जो झगड़ा हुआ है, जो इंडिया में जिसका फ़ायदा उठाया गया है, पाकिस्तान में फ़ायदा उठाया गया है, ब्रेग्जिट में उठाया गया है, ट्रम्प मूवमेंट आप देख लें, दिस इज ऑल हैव्स और हैव-नॉट्स का वो, and it is because the capitalism is a good system but it has been misused to just look after the shareholder interest. Had it been looking after the stakeholder interest, तो ये एक broader बात है, तो हम एक अनकॉन्शियसली इसके ऊपर काम कर रहे थे, और आई थिंक दैट हेल्प अस अ लॉट टू यू सी ग्रो इन अ मैनर दैट हमारा जो वर्कर था, हमारा जो एम्प्लॉय था वो बहुत इंगेज था, हमारी जो कम्युनिटी थी वो हमारे साथ बहुत इंगेज थी, हमारे सप्लायर बहुत इंगेज थे, हमारे बैंकर्स आज भी, आई डोंट वांट टू नेम एवरी बैंक, देयर टॉप लीडरशिप दे कम्स टू आवर CFO एंड बेग्स के हमारे से पैसा ले लो. So it is, so I think when you take care of everybody, whether it's your supplier, your customer, so gradually you create you see space for yourself where that is unmatched and वो करते हैं. बाकी हम शुरू में ये नज़र आता था यार वो 15, 20, 30 मिलियन डॉलर के बाद वो एक ग्रुप्स ऑफ कंपनी बन जाता है, तो हमें बड़ा शौक है ग्रुप्स ऑफ कंपनी बनने का. जहाँ लार्जेस्ट इन एशिया, फाउंटेन भी हमारा लार्जेस्ट इन एशिया होता है, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, पता नहीं वो ये कुछ थोड़ी सी मसला है हमारे कौम में. तो हमने ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार, आपको अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस और अपनी जो कैपेसिटी है उसमें यू शुड हैव एन एज एंड यू शुड हैव एन फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड. आज तो दुनिया में जो हौजरी की जो सॉक्स, हम तो हौजरी जनरल कहते हैं, सॉक्स और जो पेंटिंग की सेल है अबाउट $22 बिलियन, विच कम्स ट्रांसलेट्स टू $6 to $7 बिलियन एट FOB लेवल. एंड ऑल्दो आवर एक्सपोर्ट्स आर हायर क्योंकि हम और आइटम्स भी है, बट सॉक्स पे हम पिछले साल था $360 मिलियन आउट ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह और ऐड कर लें. सो दैट कम्स टू 5 to 6% ऑफ द वर्ल्ड एंड विल टेक इट टू 10% इंशाल्लाह. सो पहले हमने वो सॉक्स से कॉटेज इंडस्ट्री थी, हमने इसको इनटू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया. उसमें एक पोजीशन बनाई कि पीपल कम टू अस एंड वी डोंट गो टू द कस्टमर्स कम्स टू अस, एंड देन बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट कि हमारी जो सर्विस लेवल्स हैं ये है वो, एंड देन वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाई. इन द मीन टाइम हमने जब ये देखा कि हमारी ज़रूरत है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, टाइमली, और उसके इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो वी वेंट इनटू स्पिनिंग 12-13 years ago, बट नॉट एज अ मेन बिजनेस. आज भी हम आई थिंक वी हैव अबाउट हम 2 लाख से ज़्यादा बेल्स खरीदते हैं कॉटन की, एंड वी मेक अ लॉट ऑफ ब्लेंडेड yarns, ट्राई ब्लेंड्स, 4 ब्लेंड्स के भी yarns हम बनाते हैं फॉर आवर ओन कस्टमर्स. वी ऑल्सो एक्सपोर्ट yarns अबाउट $18 मिलियन से $20 मिलियन के, वो मेनली टू आवर ओन कंपनीज अब्रॉड, बट ऑल्सो तो ये उसमें भी हम हैं. बट फिर जब हमने कहा कि नहीं यार, नाउ वी हैव एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स, नाउ वी शुड स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग एंड सी कहाँ एक्सपर्टीज है, तो हमने डेनिम में ऐड किया. सो नाउ डेनिम में वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट यूनिट वैल्यूज ऑलरेडी 2 साल में हमने करके. सो वी आर वर्किंग विद द टॉप ब्रांड्स
knitwear apparel में हमने किया seamless. We have the only unit in Pakistan which is seamless, and so we thought it is about time to start expanding into other areas and add to the जो उसकी capacity का. अब मैं ये समझता हूँ कि हमें जो फ़र्क हमारा ये था कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों में, मैनेजमेंट में, वर्कर्स में इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, in terms of the trust, in terms of respect we give to them. और उसकी वजह से जो ओनरशिप उन लोगों ने ली है, आज अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे अपनी कंपनी का बारे में कुछ भी पता नहीं होगा. आई जस्ट टॉक सब लोग अपना काम चला रहे हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है. मुझे नहीं पता हमने किस बैंक से कितने पैसे लिए हैं, किस टर्म्स पे लिए हैं, या क्या हमने, तो जिस चीज़ का काम है वो कर रहे हैं. तो ये आई थिंक दैट हैज़ मेड सम डिफरेंस. कुछ हम लकी भी रहे हैं. आपकी इन सारी बातों में दो एक बातें मैं ऐड करना चाहूँगा. आई थिंक हम पाकिस्तान में, जैसे शहजाद ने भी कहा, जेन्युइन कैपिटल फॉर्मेशन और इन जेन्युइन कैपिटल फॉर्मेशन को मिक्सअप कर दिया गया. जेन्युइन कैपिटल फॉर्मेशन को एक गाली बना दिया गया, और वेयर इज द जेन्युइन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इट शुड बी रिस्पेक्टेड. एक और चीज़ हम जो आइसोलेट हो गए हैं, जो अभी कारों की बात कर रहे थे, हम कमर्शियली आइसोलेटेड कंट्री हैं. हमारा किसी से कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो बीस्ट अंदर बैठा है ना, हम कमरे में, उसको हम कोई भी रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान हैज़ द बॉर्डर्स. कोई दुनिया का मुल्क इतना ऐसा नहीं है जिसके बॉर्डर्स पे इतनी बड़ी आबादी हो जितनी हमारी है. वी हैव 3 बिलियन पीपल ऑन आवर बॉर्डर्स. वी हैव विद एटलीस्ट हाफ ऑफ देम वी हैव द सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, एंड वी डोंट हैव अ कॉमन मार्केट. आपको ये कारों का मसला ही नहीं होगा अगर आपकी ट्रेड हो रही हो, तो आप सारी मार्केट आपकी है बांग्लादेश तक. वो तीनों कंट्रीज कर रहे हैं आपस में ट्रेड. हम नहीं करना चाहते, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते. वो आई थिंक दैट इज़ वन एरिया वेयर वी डोंट, हमें और हमने आइसोलेट कर दिया. हमने अपने को आइसोलेट कर दिया है. हम पाकिस्तान, एक मिस्टर एक्स की जेन्युइनली कमाई दौलत को हम कहते हैं ये पाकिस्तान की दौलत है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कैपिटल फ्लो इन द वर्ल्ड इज नाउ फ्री. एक आपने अगर जेन्युइन पैसा कमाया है, आपका टैक्स पे किया हुआ है, इट्स योर मनी, इट्स योर राइट टू कीप इट एनी वे यू वांट. जब तक ये कैपिटल कंट्रोल्स आप रिलीज नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं मसला हल होगा. ये अभी पॉलिएस्टर की जो आपने बात की, मैं क्वेश्चन किया, वी हैव नाउ मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना. वी सप्लाई आउट ऑफ चाइना वेरी हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट. अगर वही पॉलिएस्टर बेस्ड जो माइक्रो पॉलिएस्टर मैं पाकिस्तान में मंगवाऊँ तो मुझे फ्रेट वगैरह पड़ता है. पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही वो नहीं है. I don't know whether I should say it publicly, without just by designing it and selling it and buying it from China from a trusted factory, we can still make 10% doing nothing. So what we are planning to do is that yes, we will invest more and more in Pakistan, but we already have a unit in Sri Lanka. So instead of inviting Chinese to come to Pakistan, I am trying to go and buy units in China. बिल्कुल ठीक है. Why not? Let's जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको कंबाइन करें ना. दुनिया में अब इंडिया में क्या हो रहा है? The firms are going outside, they are acquiring firms, they are combining their strengths and then going and attacking the world. Still India is growing and Pakistan भी ग्रो करेगा. हमने श्रीलंका में यूनिट लगाया, हमारी $40-45 मिलियन की वहाँ से एक्सपोर्ट है, बट $18 मिलियन का उसका जो जान है वो पाकिस्तान से हम डाई करके और तैयार करके भेजते हैं. तो इससे डबल फ़ायदा हो गया. और जो कैपिटल फ्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, आई लैंड विद दैट. आई थिंक लॉट विल बी. आपको एग्जाम्पल के लिए, श्रीलंका हैज़ गॉन थ्रू अ बैंक्रप्सी. हमें एक दिन हमारी शिपमेंट डिले नहीं हुई. देयर वाज सो मच ऑफ सपोर्ट. एक दिन कोई शिपमेंट डिले नहीं हुई. आफ्टर बैंक्रप्सी वी पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिविडेंड. नोबडी स्टॉप्ड अस. वी डोंट हैव टू आस्क एनी परमिशन. इट वाज आवर जेन्युइन टैक्स पेड मनी. वी पेड डिविडेंड. नोबडी आस्क्ड अस. सो यू सी द डिफरेंस. मैं ऐसे ज़्यादा क्या कहूँ. बिल्कुल. आपने बात की कि जी एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट जो है, हम डरते हैं इसलिए उस पर बात कोई नहीं करता. करना चाहिए ना. कब तक डरते रहेंगे? आप देख रहे हैं जो कर रहे हैं क्या हो रहा है. पर एलिफेंट है, ये सबसे बड़ी बात की, पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर जो हैं उस पर ट्रेड नहीं होता है. इंडिया आपके साथ है. ये साथ बैठे हैं. हमने बॉर्डर तक लोगों ने फार्म हाउसेस बना लिए हैं, लेकिन हम वहाँ से इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते. हम जाके को हमारा बाहर से बच्चा आता है, हम उसको जाके वो दिखाते हैं वो सलूट कैसे मारते हैं. हम वहाँ साथ वाले मुल्क में नहीं जा सकते.
ये हमारे जो बॉर्डर है अफगानिस्तान की और उधर जितनी हमारी जो स्मगलिंग है, जितनी इनफॉर्मल ट्रेड है, वो ईरान से हो रही है, वहाँ से बलूचिस्तान के रूट से या केपी से, चूँकि वो बॉर्डर है ही ऐसे कि वो सिक्योरिटी बेस्ड है, तो वो उस तरह सब कुछ हो रहा है और इंडिया से कुछ भी नहीं हो रहा। और हम जो है पता नहीं कितनी दूर से चीज़ लाते हैं, कितनी दूर बेचते हैं। तो ये एलिफेंट इन द रूम है, इस पर हमें बात करनी है कि हमें इकोनॉमिक स्टेट बनाना है, तो हमें अपने ये हमसायों के जो डर के खौफ है इससे निकलना है, इस बुखार से निकलना है। ये डिबेट होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि अब आगे मैं चलता हूँ शहजाद आपके पास, और वही सवाल मैं अली के पास लेके जाऊँगा कि जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, टर्फ जो थी वो कैपिटल, उसमें एक कंडीशन थी कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मिसयूज हो सकता है या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है कि जो पैसे कैपिटल में लगाने थे वो अपने रियल एस्टेट में लगा दिए। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक मनी दैट यू गॉट एट लोअर रेट कि वो आपने कैपिटल लगाना है। अब उसमें ये नहीं पकड़ा कि जी आपने ए इंडस्ट्री में लगाना है, बी में लगाना है, सी में लगाना है, इंडस्ट्री में लगाना है आपने, ठीक है जी। उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो टेक्सटाइल में लगाया और विद इन दैट मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सटाइल स्पिनिंग में लगाया। ऐसा क्यों है?